कैमरा सैट कर लिए मर गया ते सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਜੈਜ਼। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡਾ 'ਚ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ऊपरों डिप्रेशन जहा हो जाता। मैं एक रैंडमली ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत मन था कि ये सारी चीज़ें ना आपके सामने रखूँ, पेरेंट्स के सामने रखूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चे यूके में आ रहे हैं या आना चाहते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप यहाँ पर होते नहीं हो, जब आप इंडिया में होते हो तो आपको यूके आने की बड़ी जल्दी होती है या काली हुई होती है, पंजाबी च कहते हैं बहुत काली लगी होती है। जब ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਜਦ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਵਧੀਆ ਆ, ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਆ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, 20 ਆਵਰਸ ਅਲਾਉਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਆਵਰਸ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਨੇ, ਬਿਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਊਂਸਲ ਟੈਕਸ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਦਤ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 20 ਆਵਰਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਭਾਈ ਯੂਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਮਾ ਲੈਣੇ, ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕੱਢ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 'ਚ ਵੀ, ਹਡਰਸਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਵਧੀਆ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘੱਲੋ। ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਂ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਰੂਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ कुछ ना। ये चीज़ें सोच समझ के आए हो। बच्चे यहाँ पे ना आज के जो 2024 की मैं करंट बात कर रहा हूँ, बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है और घर का गुजारा नहीं हो रहा है। 20 आवर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे रेंट भरना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर अगर घर से इंडिया से लोन वगैरह उठाया है तो वो पे करना, रीपे करना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर कंपनियों ने स्पॉन्सरशिप देना बहुत हार्ड कर दिया है। पहले तो वो जो प्रेफरेंस है अपने लोगों को ही देते हैं यहाँ पे, भले 20 आवर्स का काम हो या फुल टाइम काम हो। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, यू आर वेल क्वालिफाइड,
then they will think on it and then they will at least consider your application. You go to interview and then अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो, आपको कंपनी हायर कर लेती है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं हायर करती है देन दोबारा से आपको हाथ पैर मार के अप्लाई करना होता है. तो आखिर में ऐसा भी हो जाता है कि काफ़ी लोगों को अपना प्रोफेशन जो है वो चेंज करना पड़ जाता है. अगर उन्होंने डॉक्टर की डिग्री करी हुई है और रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट वाले अगर उनको स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं तो फिर वो 5 साल के स्पॉन्सरशिप के लिए रेस्टोरेंट में ही काम करना शुरू कर देते हैं. ऐसा मैंने देखा है, बहुत बच्चों के साथ हुआ है. तो यहाँ पर मेरा कहना है कि यहाँ पर ही ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है. आप मेहनत करो, आप आओ जरूर. मैं ये नहीं कहता कि आप यूके में ना आओ. यूके में रिसेशन चल रहा है या यूके में महामारी चल रही है मतलब आपको काम नहीं मिलेगा. यहाँ पर काम बथेरा है. आप थोड़ी सी रिसर्च कर लो, थोड़ा बैकअप प्लान रख के आओ. फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल हो तो वेल एंड गुड. अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो आपके लिए भाई दिक्कत आ सकती है. ये सारी चीज़ें ना ग्राउंड रियलिटी आपको कोई नहीं बताएगा. मतलब आपको ऊपर ऊपर से गाइडेंस दे देंगे व्यूज़ बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए. लेकिन मैं आपको बताऊँ ग्राउंड रियलिटी जानना बहुत ज़रूरी है. आप यूके में आपके क्या करोगे, आपका मोटिव क्या है, आपको रहना कहाँ पे है, आप क्या काम करोगे, ये सारी स्ट्रेटजीज अगर आप बना के आते हो इन एडवांस तो बहुत अच्छा है. और कंपनियां रिसर्च करके आइए. काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता है कि अप्लाई कैसे करना है. काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता है कि काम कहाँ करें. बच्चे सिर्फ अंधाधुंध ये कर रहे हैं कि भाई स्पॉन्सरशिप मिल जाए, जहाँ मर्जी काम मिल जाए, बस स्पॉन्सरशिप मिल जाए. तो ये भी सिनेरियो चल रहा है अभी यूके में. इसके अलावा मेरी दरख्वास्त परिवार वालों से यही होगी कि भाई अगर आपका बच्चा वेल टू डू कर रहा है ना धकेलो बाहर. कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मतलब चलो अगर आपकी कोई पहचान वाले रहते हैं, रिश्तेदार ऑलरेडी रह रहे हैं जिनके पास बच्चा जाके थोड़ा गाइडेंस ले सकता है और वहाँ पे काम कर सकता है या रह सकता है या खाने पीने का बंदोबस्त हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है. जी आया जैसे मर्जी आओ, मतलब है ना दिल खोल के आओ. अगर आपके पास यहाँ पर कोई पहचान का बंदा नहीं है, आपको पता नहीं है किसके पास जाना है, यहाँ पर आपको कुछ आइडिया नहीं है कि रेंट वगैरह क्या होगा, आपके खर्चे वगैरह कैसे निकलेंगे, तो भाई बहुत मुश्किल होता है इनिशियल स्टेज में. मैं बता दूँ काफ़ी बच्चों के मुझे मैसेजेस आते हैं अब भी कि मुझे काम नहीं मिल रहा है. हम यहाँ पर लंदन में रह रहे हैं, स्पेशली लंदन से, कि लंदन में रह रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है. क्योंकि वहाँ पर लंदन में सारे देशों से, अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं. मतलब एक जॉब निकलती है तो 100 एप्लीकेशन डली हुई होती है ऑलरेडी. तो आपका उसमें से सिलेक्शन होना मुश्किल हो सकता है. यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ है कैरोम में फ़िलहाल तो चल रही हैं. कैरोम के भी बड़े फ्रॉड हो रहे हैं. रिसेंटली एक बच्चे का मुझे ईमेल आया कि भाई ये कैरोम यूके में एग्जिस्ट करता है कि नहीं. उन्होंने डिटेल्स मुझे भेजी और वो चाहते थे कि मैं उनके लिए फाइंड आउट करूं कि ये कंपनी यूके में एग्जिस्ट करती है कि नहीं. क्योंकि एजेंट ने ऑलरेडी 20 लाख रुपए उनसे ले लिए थे. 20 लाख रुपए आप समझ लो, 20 लाख आप आंख बंद करके दे रहे हो. आपको ये नहीं पता है कि वो कंपनी यूके में एग्जिस्ट करती है या नहीं. कंपनी ने आपको कंपनी की तरफ से आपको कुछ ईमेल आया है या नहीं. एजेंट के भरोसे आप अप्लाई कर रहे हो सीधा सीधा. काफ़ी एजेंट है जो ऐसे ठगी मार के बच्चों के पैसे लूट के भाग जाते हैं. ऐसा ना करें, इस चक्कर में ना फंसे. ये बहुत अभी ट्रेंड चल रहा है. बच्चों को बेला फुसला के उनसे पैसे ले लेते हैं, उनके परिवार वालों से पैसे ले लेते हैं और फिर यूके में पता चलता है कि वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है. या फिर चलो वो कंपनी एग्जिस्ट भी करती है, आपको कॉस्ट लेटर भी मिल गया, आप यूके में आ भी गए, लेकिन यहाँ के जो केयर होम है फिर वो नकार देते हैं कि हमारे पास तो जॉब ही नहीं है, हमारे पास आपको देने के लिए शिफ्टें नहीं है, तो आप कहीं और काम देख लो. ये भी बहुत चल रहा है यूके में. आप बहुत ध्यान से इस सारी चीज़ों को परख के फिर अपने पेपर्स वगैरह लगाएं और पैसे वगैरह दें. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें. यूके में आए, डिग्री कर रहे हो तो मेक श्योर आप उसी में काम ढूंढें. अपनी फील्ड चेंज कर रहे हो तो आपको नुकसान भी हो सकता है और शायद आपका मन भी ना लगे. तो यही वीडियो बनाने का मोटिव था. पेरेंट्स इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें. अगर आपके बच्चे यंग हैं, 20-22 की उम्र में हैं, आप बाहर भेज रहे हो तो उतनी छोटी उम्र में मतलब उन पे बहुत सारी जिम्मेदारी आप धकेल रहे हो, तो
फाइनेंशियल स्टेटस अगर आपका अच्छा है तो बच्चों को बाहर ना भेजें, अपने आप से दूर ना करें, मैं तो यही बताऊंगा। बाकी आपकी मर्जी है। सो ये वीडियो बनाने का मोटिव था। अब अलविदा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, लुक आफ्टर योर सेल्फ। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू।